Good morning, students. In Advanced Java Programming Unit number 3, Servlet API and its overview. In this session, we will discuss about a session management in a servlet. So let's start. First, what is servlet? What is a session? So basically, a session refers to the entire interaction between a client and a server from the time of the client's first request, which generally begin the session, and to the time of the last request or a response. So basically, what is a session? Session is a nothing but the first interaction of a client with the server. It means that when a client can first time request for any particular web page, dynamic web page, or any data, it first send the request to the server. So the first request when the client can make at that time, the session is a begin. Session basically used to what we say is used to track the interaction of a client or a user with the server. How many times the user can interacted with the server, and how, and what the timing it's taken, right? So basically, the session, what is the need or requirement of a session? So in a HTTP, it means the hypertext transfer protocol, which is a stateless protocol. It means that the each and every time the client retrieve a web page, the client open a separate connection. It means the HTTP is a stateless protocol. So whenever client can make a new request, at that time the separate connection for the every request is created, so to the web server, and the server automatically does not keep any record of the previous client request. So HTTP की जो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, राइट, सो इच एंड एवरी टाइम जब भी क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, एट दैट टाइम क्या होगा कि सेपरेट कनेक्शन जो है वो वेब सर्वर डेवलप करेगा, और वेब सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली उसका कोई भी ट्रैक या तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है कि प्रीवियसली कौन से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी, कौन से टाइमिंग पे की थी, वो सेशन उसका कितने टाइम चला था, और लास्ट रिक्वेस्ट उसकी कब आई थी, ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं होता है इन अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल के अंदर. सो द सेशन is a required to keep the track of the user and their information about the all the requests, its timing and other information. So that's the reason why we required a session management, right, to keep the track of user and their information. So basically, the client and a server, the client can make a request, a new request, and server can give the response. And again client, or we can say the same client, can make a second request, which is a new one, and server again give a response. So each and every time when a client can make a request and server can give the response, the all the information about the client and its request and the overall information will maintain by the session management. So the session management example for the application of a session, so when a user can logs into your website, no matter on a which web page he visit after the login. His credential will be with the server until user can logs out. So this is managed by the creating a session. It means that कि whenever और जब भी हम कोई भी लॉगिन करते हैं, एट दैट टाइम हमारे जो क्रेडेंशियल है वो सर्वर के पास रहते हैं, और जब हम लॉग आउट करते हैं तब तक कि हमारा जो पूरा सेशन है वो स्टार्ट रहता है. आफ्टर द लॉगिन हम कौन से वेब पेज पे जाते हैं, क्या हम विजिट करते हैं और कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं, उससे सर्वर को कोई मतलब नहीं है.
बट द मेन थिंग अबाउट द सेशन मैनेजमेंट इज दैट कि हम जब भी लॉग इन करते हैं और जब लॉग आउट करते हैं, इन बिटवीन जो भी हमारी एक्टिविटीज है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो यूजर्स के पास, सॉरी सर्वर के पास रहती है, वो उसको स्टोर करके रखता है कि हमने क्या किया। उसका जो पूरा लॉग्स है, वो लॉग्स कहाँ रहता है, सर्वर के पास रहता है। सो सेशन मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म which is used by the web container to store the session information for a particular user. So in a servlet, basically in a session management there are four different techniques which is used in a servlet for the session management. The first one is a hidden form field, second one is URL rewriting, third one is a cookies, and the last one is a HTTP session. So these are the four techniques which used in a servlet to for a session management: hidden form field, URL rewriting, cookies, and a HTTP session. Let's see first one, hidden form field. So hidden form field, or is known as a hidden or a invisible text field, which is used for maintaining the state of an user. So in such a case, we store the information in the hidden field and get it from another servlet. So if you know HTML language properly, then you should know that कि in a HTML के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका टाइप है हिडन, कि जो हिडन रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करते हैं वो एज अ यूजर हमें वो दिखाई नहीं देती, बट वो वहां पे उस पर्टिकुलर पेज पे स्टोर रहती है. सो बाय यूजिंग द हिडन फील्ड हम सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उसी हिडन फील्ड का यूज करके जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट की और फिर से उसने सेकंड कोई सर्वलेट एक्सेस किया, उसके बाद थर्ड सर्वलेट एक्सेस किया, एंड सो ऑन. तो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें एक सर्वलेट के से दूसरे सर्वलेट में ट्रांसफर करने के लिए हम हिडन फॉर्म फील्ड का यूज कर सकते हैं, और यूजर को वो पता नहीं होगा कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वलेट वाइज सर्वलेट जैसे वो विजिट करता जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन और उसका जो सेशन है वो मेंटेन हो रहा है. सो बाय यूजिंग द हिडन फॉर्म फील्ड वी कैन मेक अ सेशन मैनेजमेंट. So for an example, इन अ फॉर्म और इन अ वेब फॉर्म की जो HTML में रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे कि एक इनपुट, उसका टाइप दे देंगे हिडन, उसका नाम हम स्पेसिफाई कर देंगे सेशन आईडी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दी 54. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेशन, कि जो सेशन है वो सेशन 54 आईडी का सेशन है, राइट. सो इस तरह से हम हिडन फील्ड का यूज करके जो भी पर्टिकुलर नेम और जो उसकी वैल्यू है वो हम हाइड रख सकते हैं, और सर्वलेट बाय सर्वलेट हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द सेशन मैनेजमेंट, राइट. सो क्या होगा कि जो हमने इस तरह से हमने हिडन फील्ड स्पेसिफाई की, एट दैट टाइम क्या होगा कि सपोज हमारे login.html का एक फॉर्म हमने डिजाइन किया और उसमें हमने एक सेशन आईडी रखी है, तो ये जो पर्टिकुलर सेशन आईडी है वो हिडन रहेगी, वो हमें नहीं दिखाएगा. जैसे ही हमने यहाँ पे करेक्ट जो क्रेडेंशियल है, नेम एंड पासवर्ड, वो पेस्ट किया, हम ट्रांसफर होंगे एक valid.java के अंदर, कि जो काम करेगा, क्या करेगा, तो कि यहाँ से जो नेम एंड पासवर्ड आया वो उसको सबसे पहले गेट करेगा, उसको फैच करेगा. उसके साथ साथ वो क्या फैच करेगा, तो कि सेशन आईडी भी फैच करेगा, राइट. और उसके बाद क्या होगा कि वो जाएगा एक वेलकम पेज के अंदर, कि जहाँ पे वेलकम पेज में भी क्या होगा कि जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट में जो भी सेशन आईडी है वो सेशन आईडी भी हम यहाँ पे वेलकम में उसका यूज करेंगे. तो जो सेशन आईडी पर्टिकुलर इस लॉगिन टाइम पे अगर उसने करेक्ट क्रेडेंशियल डाला, तो जो भी सेशन आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट होगी, और वो सेशन आईडी सर्वलेट बाय सर्वलेट क्या होगी, यूज होगी, कि यस 54 आईडी का एक सेशन क्रिएट हुआ जब यूजर ने लॉगिन किया, उसके बाद उसने इस पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस किया, उसके बाद नेक्स्ट इस पेज को, और सो ऑन. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम हिडन फील्ड के थ्रू मेंटेन रख सकते हैं सेशन को मैनेज
कर सकते हैं। तो जो उसका ओवरऑल प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे पहले login.html फाइल की जिसमें html हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने एक फॉर्म ले लिया, एक्शन इज इक्वल टू हमने पाथ स्पेसिफाई कर दिया कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है जब हम सबमिट क्वेरी पे क्लिक करेंगे, सॉरी सबमिट बटन पे। और जो पोस्ट मेथड जो है वो हम पोस्ट यूज करें ताकि जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यूआरएल के थ्रू विजिबल ना हो। उसके अंदर हमने लॉगिन आईडी ली, पासवर्ड ले लिया और एक हिडन फील्ड ले ली जिसका नाम रख दिया हमने सेशन आईडी और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई कर दी और एक सबमिट बटन लिया और बाकी के जो टेक्स्ट है वो हमने क्लोज किए। तो ये हमारे हो गया login.html फाइल कि जहां पे हमारे पास टोटल 4 जो कंट्रोल है वो है 2 टेक्स्ट बॉक्स लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के लिए, 1 मोर टेक्स्ट बॉक्स विच इज अ हिडन एंड 1 बटन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो HTML फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हमें विजिबल रहेगा, जो हिडन फील्ड है वो हमें नहीं दिखेगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक valid.java नाम की एक फाइल बनाएंगे कि जो क्या करेगा कि वैलिडेट करेगा कि जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूजर ने एंटर किया वो करेक्ट है या नहीं। तो डू पोस्ट मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट टाइप सेट किया रिस्पॉन्स का, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड से, एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी लिया, वो क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसका काम है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है, फॉरवर्ड करना और एक्सेट्रा, राइट। इन डिटेल विद एग्जांपल हम ये जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम हम इसको इन डिटेल देखेंगे, बट फिलहाल हम इसको इन डिटेल में नहीं जाएंगे। एक स्ट्रिंग लॉगिन आईडी लिया, एक लॉगिन लिया जिसमें हम जो यूजर ने इनपुट दिया है लॉगिन फील्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे। सेम वे से हम पासवर्ड को भी गेट करेंगे और सेम वे से हम क्या करेंगे, सेशन आईडी को भी फेच करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ द लॉगिन डॉट इक्वल्स टू जावा एंड pwd डॉट इक्वल्स टू द सर्वलेट। इट मींस कि चेक करेंगे कि जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं। अगर लॉगिन जो आईडी है वो जावा होगी एंड पासवर्ड जो सर्वलेट होगा, सो क्या करना है कि हमें रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना है कहाँ पे, तो कि वेलकम नाम की फाइल में, कि जो हमारी नेक्स्ट फाइल रहेगी। और उसका जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसको हम पास करेंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स जो है उसकी, उसको हमने नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया और हमने क्लोज कर दिया। अगर नहीं इल्स तो क्या होगा कि इनकरेक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड दिखाएगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है वो गेट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड लॉगिन डॉट एचटीएमएल को फिर से वो शो करेगा। और उसमें हमने क्या करवा दिया, इंक्लूड करवा दिया रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को। तो ये हो गया हमारा वैलिड डॉट जावा। और ये है हमारा वेलकम डॉट जावा फाइल कि जहां पे हम डू पोस्ट मेथड में कंटेंट टाइप सेट किया, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट लिया, सेशन जो आईडी है वो हम सेशन आईडी यहाँ पे फेच करेंगे और उसको उसके साथ साथ हम जो सेशन आईडी है उसको प्रिंट भी करवाएंगे, राइट। और वेलकम जो यूजर का नेम जो डाला होगा उसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो किस तरह से वर्क करेगा, तो अगर हमने सही आईडी एंड पासवर्ड इनपुट दिया तो क्या होगा कि जो सेशन आईडी 54 नंबर की है वो हमारी valid.java नाम की जो फाइल है वहां पे ट्रांसफर होगी। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही valid.java फाइल एग्जीक्यूट हुई और उसने चेक किया कि यस यूजर आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट है, तो वो welcome.java वाली जो ये फाइल है वो डिस्प्ले करेगा, राइट। और उसमें क्या होगा कि वो सेशन आईडी को भी प्रिंट करेगा और बताएगा कि यस यूजर नेम इज दिस एंड योर सेशन आईडी इज दिस। तो क्या होगा कि जैसे ही वैलिड आईडी पासवर्ड डाला वो यूजर जो सेशन है यूजर का वो सेशन आईडी और यूजर का नेम जो लॉगिन नेम है वो फेच करेगा और हमें बताएगा कि यस योर सेशन आईडी इज दिस एंड वेलकम पर्टिकुलर यूजर नेम। तो इस तरह से वर्क करेगा। रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ अ हिडन फॉर्म फील्ड कि इट इज वाइडली यूज्ड इन अ कमेंट
फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट की जो कमेंट फॉर्म है उसके लिए वाइडली यूज होता है हिडन फॉर्म फील्ड. In a such a case, we store the page ID and a page name in the hidden field so that the each and every page can be uniquely identified. तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हिडन फॉर्म फील्ड का. एडवांटेज क्या है, हम इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इट विल वर्क वेदर द कुकी इज अ डिसेबल्ड और अ नॉट. राइट, कि कहीं पे भी अगर हम सेशन मैनेजमेंट के लिए कुकी का अगर यूज करते हैं तो कई ऐसी सिस्टम्स है जहां पे कुकीज डिसेबल्ड रहती है तो सेशन मैनेज नहीं होता है. तो इन दैट केस द हिडन फॉर्म फील्ड इज वेरी यूजफुल टू मेंटेन अ सेशन. राइट, डिसएडवांटेज इज दैट कि इट इज अ मेंटेन्ड एट अ सर्वर साइड. ये क्लाइंट साइड नहीं मेंटेन होता है, ये सर्वर साइड मेंटेन होता है. एंड एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन इज रिक्वायर्ड ऑन ईच एंड एवरी पेज. राइट, कि हमें एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा टू मेंटेन अ सेशन. जैसे कि हमने देखा कि हमें टोटल 2 जावा फाइल और एक HTML फाइल को यूज करना पड़ा टू डू द सेशन मैनेजमेंट. Right, so this is the disadvantage, and in this only textual information can be used. We cannot use a graphical or any other information, only textual information. Or we can say that ki by using the textual information we can make or do the session management by using the hidden form field. So and it does not support the hyperlink submission. हिडन फॉर्म फील्ड है, सो हम कोई हाइपरलिंक सबमिट नहीं कर सकते हैं इससे. राइट, सो सिक्योरिटी इश्यूज रहती है, जैसे कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर नेम से आईडी होगी तो हम भी हमारी आईडी को फैच कर सकते हैं, तो इसकी जो सिक्योरिटी है वेरी लो है. सो अगर हम गेट मेथड का यूज करेंगे तो सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी और वो इजीली व्हाट वी से विजिबल रहेगा यूजर्स को. यूजर मे व्यू द पेज सोर्स एंड कैन व्यू द हिडन फील्ड. यस, अगर हम राइट क्लिक करके पेज सोर्स हम देखेंगे तो उसमें ये हिडन फॉर्म फील्ड हमें दिखा देगा, क्योंकि हिडन फॉर्म फील्ड वो ग्राफिकली हमारे पास जो अपीयर होता है वो वहां पे हिडन है, बट सोर्स में तो वो रहेगा ही रहेगा. जैसे ही हमने सोर्स देखा हमें पता चल जाएगा कि हिडन फॉर्म फील्ड का यूज किया गया है, तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती है. तो ये डिसएडवांटेज है हिडन फॉर्म फील्ड के. तो आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम जो रेस्ट ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स है सेशन मैनेजमेंट की उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.